Hello friends, hello children, I hope you are fine there. So classes is going on and now I have come with the second poem that is known as Keeping Quiet. That is known as Keeping Quiet. Keeping Quiet. Okay, and in this poem, poet wants to aware persons, aware children, aware human being regarding the importance of keeping peace. Okay, so what is the theme of this poem? Theme, Theme. Theme means main idea. Main idea. Okay, and main idea, and then the detail descriptions I will tell you step by step. So quiet, first word, that is quiet. What is the meaning of Q-U-I-E-T, quiet? This quiet word means peace or calm, C-A-L-M, calm, or silence. Okay, so these are some synonym of the word quiet. Another word, Q-U-I-T-E, quiet. This quiet means complete. Okay, complete, entire. Okay, today one student told me about the meaning of this word. Enough. You can take that. Enough. Okay, and there is another word, quit. Q-U-I-T, quit. This quit means leave, L-E-A-V-E, leave. So these are some of that the word meaning. So if I put this word keeping quiet की जगह पे अगर हम लिखते हैं इस तरह, क्या है? keeping peace, या फिर keeping peace, या फिर silence. Okay, so if I write the title like this, importance of keeping silence. That will be the meaning of this, the title here. You can say that this is the main idea of this poem. What is that? Importance of keeping silence. In our day-to-day life, in our scheduled activities, in our busy scheduled activities, what happens? There is an importance of keeping silence. Now, how to keep silence? In which cases this keeping silence is important? In this poem, poet Pablo Neruda has detailed it, displayed it very efficiently. Poet Pablo Neruda is a nature lover. Poet Pablo Neruda is also a human lover. He is a philanthropist. Okay, poet Pablo Neruda is a big philanthropist as well as he is a nature lover. Okay, philanthropist is that person who loves human being. So in this poem we will learn that what Pablo Neruda has given us, that is very much important in our life. Okay, now for understanding this poem you are also to keep patience, because this poem has two different meaning. The first part and then second part. Okay, so I will tell you step by step. Poet has before making us aware all about the ideas of this poem, poet has given us two things, and that is the clock. In this poem, if you open the pages of this book, then we will see there is a in this poem you will, if you see, then there is a target, there is a figure, the figure of planet, and some children are there, and their hands are closed with each other. You see, just
just after the title, open the book and you will see, just after the title you will see that children are keeping their hand, right, they are standing up, and this is the earth, this is our planet. Okay, so now what is the figure talks about? This figure, planet, these children, or you can say that, you know, that we human being are living together, standing together to help to save this planet. To save this planet, because this planet has been suffering from pollutions, global warming, etc. So in this poem, poet has talked about some technique, some awareness. Poet has given us some awareness that the way we can save our planet, because we are the persons who live, we are the persons who are using this, you know, planet. So it is our responsibility, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इसको सेव करें, हम इसको बचाए रखें, प्रोटेक्ट करें. तो poet tells there is a watch. You are to, I have told you, मैंने बताया आपको कि ये पोएम थोड़ा सा ट्विस्टिंग आइडिया दिया हुआ है इन ए ट्विस्टेड वे. तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा. यहाँ पे घड़ी का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे प्लानिट का एग्जाम्पल दिया है, और भी डिफरेंट एग्जाम्पल दिया है. तो ये आपको समझने की ज़रूरत है. ओके, लाइक दैट. सो हियर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दिस एंड दैट. ओके, तो यहाँ पे क्लॉक का एग्जाम्पल क्यों दिया है? क्लॉक का एग्जाम्पल इसीलिए दिया है दैट मीन्स, यू नो, जब हम लोगों की माइंड किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है या फिर स्ट्रेसफुल हो जाता है, टेंशन आता है, टेंशन या फिर स्ट्रेस या फिर एंगर या फिर फेलियर या फिर टेरर. ओके, जब इस सिचुएशन में इंसान होता है, तो ऐसा लगता है कि बार बार वही आइडिया इनको डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, बार बार वही चीज़ जो है इनको डिस्टर्ब किए जा रहे हैं. ठीक है, वही आइडिया बार बार आ रहा है. मान लीजिए कि किसी वजह से किसी के साथ कुछ एक्टिविटी हुआ, एंगर हुआ, अब वो एंगर की वजह, एंगर का सॉल्यूशन ये ढूंढ नहीं पड़ रहे हैं. दैट मीन्स, यू नो, ये बंदा जो सोचे जा रहे हैं बार बार वो आइडिया, वो फिगर, उसकी शकल सूरत जो है सामने आ जा रहा है. अब ये बंदा परेशान है. पोएट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि दैट मीन्स, यू नो, अगर आप you want to be free from anger, if you want to be free from tension, if you want to be free from this stress, then आपको दो चीज़ करना होगा. और वो क्या करना होगा? वो आपको दो चीज़ करना होगा. एंगेज इन एक्टिविटी, किसी काम में आपको व्यस्त करना होगा. किसी watch something that is pleasurable. और या तो फिर आपको कोई चीज़ ऐसा फनी इंसिडेंट्स और एक्टिविटी में आपको शामिल होना होगा. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पोएम में अभी एंट्री नहीं मारे हम, लेकिन पोएट यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टैंजा में ये दिखाए हैं, घड़ी का एग्जाम्पल दिया है. घड़ी का एग्जाम्पल क्यों दिया है वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई इंसान को जब ये सारे प्रॉब्लम्स दिखने लगता है किसी वजह से, तो फिर एक टेक्निक, मेरा टेक्निक ले लीजिए आप, और वो है टेक्निक एंगेज योरसेल्फ इन सम एक्टिविटी और वॉच सम थिंग्स दैट इज प्लेजरेबल वन, फनी वन, हैप्पी वन, और फनी इंसिडेंट के साथ आप इन्वॉल्व हो जाइए. ठीक है, तो फिर क्या होगा? आपका माइंड जब ये सारे एक्टिविटी के साथ जुड़ जाएगा, अटेंटिव हो जाएगा, तो ये चीज़ आप कुछ देर के लिए रिप्लेस कर दोगे, भूल जाओगे. ठीक है, तो जब जितना एंगेज करोगे माइंड को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, उतना ही क्या होगा? ये चीज़ आप भूले रहोगे. कभी आपने सुना होगा कि लेजी पर्सन्स और
एम्प्टी माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप। एम्प्टी माइंड और एम्प्टी ब्रेन, जब ब्रेन में दैट मीन्स आपके दिल दिमाग में दैट मीन्स अगर कोई एक्टिविटी नहीं है या फिर आप किसी काम में व्यस्त नहीं हो, तो फिर वो जो एम्प्टी दिमाग है उस वक्त आपके मन में ये सारे पॉइंट आ सकता है। तो इसीलिए जब माइंड को, जब आपकी ब्रेन को कहीं किसी एक्टिविटी में आप एंगेज करोगे, तो ये जो बुरी ख्यालात हैं, ये जो टेरिफिक आइडियाज़ हैं, ये सारे एक्टिविटी आपके दिल दिमाग में नहीं आएगा। आपको एक एग्जांपल देते हैं। दैट मीन्स लास्ट ईयर एक स्टोरी आपने पढ़ा होगा, दैट मीन्स द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। ठीक है, तो पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी का जो है वो रिलेशनशिप था, दैट मीन्स ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन के बीच में जो रिलेशनशिप था, कैसा, एक दोस्ती का रिलेशनशिप था। दादी ये समझती थी कि दैट मीन्स मेरा पोता क्या सीखेगा, गॉड को मानेगा, स्क्रिप्चर्स बुक पढ़ेगा। ठीक है, लेकिन दादी को ये नहीं मालूम था कि बेटा, पोता बड़ा होके अब मॉडर्न स्टडीज़ में लाइफ को एंगेज करेगा, फिर म्यूजिक लेसन भी सीखेगा, आर्किमिडीज फार्मूला भी सीखने लगेगा। दादी को ये सारे मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न और इंग्लिश लैंग्वेज, मॉडर्न एजुकेशन में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं था, इंटरेस्ट नहीं थी। दादी धीरे धीरे कट अप हो गई हैं। दादी के मन में एक स्ट्रेस आने लगी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि दैट मीन्स पोता जब म्यूजिक लेसन सीखने लगा तो फिर दादी को बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत सैडनेस हुआ। लेकिन ये जो रिलेशन का दैट मीन्स ये दादी जो चाहती थी, बेटा ग्रैंडसन ने उस चीज़ को इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो ये जो होपलेस हुआ, फेलियर हुआ इनका अटेम्प्ट, तो दादी शी वॉज अपसेट। लेकिन वो अपसेट को उन्होंने जाहिर नहीं किया, बल्कि उस अपसेट को बहुत ज़्यादा सोची नहीं है, बल्कि शी एंगेज हर सेल्फ इन सम अदर एक्टिविटीज़ लाइक स्पिनिंग व्हील में बैठ के जो है तागा बिनती थी, राइट। और क्या करती थी, दैट मीन्स स्पैरोज को फीड करके अपने आप को जो है तसल्ली देती थी। और क्या करती थी, काउंटिंग द बीड्स ऑफ रोजरी। तो दैट मीन्स दिस वे शी वाज रियली फ्री एंड फ्रैंक। शी पास्ड हर लाइफ वेरी हैप्पीली। दिल में जो धोखा खाई थी, दिल में जो स्ट्रेस थी, टेंशन थी, फेलियर थी, ये किसी को जाहिर होने नहीं दिया। यानी कि आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी ऐसा कभी सिचुएशन आए तो फिर क्या करना होगा, ये करना होगा। आ जाओ, अब आपको बताते हैं राइटर ने ये यहाँ पे ये चीज़ क्यों दिया। सपोज आप कहीं ऐसी जगह पे बैठे हों, ऑफिस में बैठे हों, या फिर किसी टेबल पे बैठे हों, या फिर स्कूल लाइफ में बैठे हों, ठीक है, और आपको बैठे बैठे ही कभी जो है गुस्सा आ सकता है। ऑफिस में बैठे हो, स्कूल में बैठे हो, या फिर कहीं बैठे हो, बैठे बैठे ही कहीं आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन यू डोंट लाइक टू एक्सप्रेस योर एंगर, यू डोंट लाइक टू एक्सप्रेस योर स्ट्रेस। तो फिर उस वक्त आप क्या करोगे? मैंने कहा कि आपको दूसरे एक्टिविटी में माइंड को एंगेज करना होगा। राइटर ने कहा है कि लुक एट द क्लॉक, लुक एट योर रिस्ट वॉच। हाथ में घड़ी रहता है, या तो चलो फिर कोई ऑफिस में ले लो या फिर स्कूल में ले लो, तो फिर कोई कहीं ना कहीं आपको क्या दिखेगा, घड़ी तो दिखेगा ना। अब घड़ी पे ताकोगे आप, ताक करके बेटा काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5। अब जानते हो इसमें क्या होता है? इसमें जब आप काउंट करना शुरू करते हो तो फिर जो थिंग, जो आइडिया आपको डिस्टर्ब कर रहा था ना, वो चीज़ कुछ पल के लिए बेटा रिप्लेस हो जाएगा, माइंड से रिप्लेस हो जाएगा। आप इधर इस एक्टिविटी में एंगेज हो जाओगे। जब इस एक्टिविटी में एंगेज हो जाओगे तो फिर क्या होगा? जब इस एक्टिविटी में एंगेज हो जाओगे तो फिर पोएट कह रहे हैं देयर विल बी, आपकी ब्रेन में एक रिलैक्स महसूस होगा, दैट मीन्स पीस आ जाएगा, फिर पीस, और फिर साइलेंस आ जाएगा आपकी ब्रेन में, साइलेंट सिचुएशन क्रिएट होगा। तो इंट्रोस्पेक्शन डेवलप होगा, इंट्रोस्पेक्शन होगा, या फिर रिट्रोस्पेक्शन हो जाएगा, RETRO, रिट्रोस्पेक्शंस। ये इंट्रोस्पेक्शन और रिट्रोस्पेक्शन क्या है? अच्छा, हैव यू हर्ड द वर्ड इंस्पेक्शंस? इंस्पेक्शन मीन्स डीप सर्च, ठीक है। इंट्रो मीन्स इनर साइड, मीन्स आप किसी चीज़ के बारे में कोई गहराई में अगर जाओगे, ढूंढोगे कि इसका रीज़न क्या था, ये सोच रहे हो आप, यानी कि यू गो इनसाइड, डीप टू डीपर, डीपेस्ट एरिया में जा रहे हो, राइट। तो उसको कहा जाता है कि इंट्रोस्पेक्शंस। रिट्रो, फिर आप डीपेस्ट प्लेस से आप रिटर्न आ रहे हो, राइट। तो आपकी माइंड में ये जो कैलकुलेशन चलता है, ब्रेन में जो कैलकुलेशन चलता है, राइट, उसको कहा गया है इंट्रोस्पेक्शंस एज वेल एज रिट्रोस्पेक्शंस। ओके, जब ये इंट्रोस्पेक्शंस, आई मीन टू से दैट जब आप
आपके माइंड को 1 2 3 करके या फिर किसी एक्टिविटी में एंगेज कर दोगे, थोड़ी देर के लिए आपकी ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा, ब्रेन सेल में आपका इनाफ ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। जब इनाफ ऑक्सीजन आपके ब्रेन सेल में पहुंच जाएगा तो तुरंत क्या होगा, आप उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू करोगे, उस चीज़ के बारे में यू विल स्टार्ट थिंकिंग एंड देयर विल कम इंट्रोस्पेक्शंस, देयर विल कम रिट्रोस्पेक्शंस। यानी कि इसका शॉर्ट में आप मीनिंग समझ लीजिए, एनालिसिस और रीएनालिसिस। यानी कि आप किसी चीज़ के बारे में रीएनालिसिस करना शुरू कर दोगे। जब रीएनालिसिस शुरू हो जाएगा, माइंड में ये चीज़ हो जाएगा, तो आपको लगेगा दैट मीन्स यू नो जिसकी वजह से आप एंग्री हो, जिसकी वजह से टेंशन में हो, वो चीज़ क्या हो जाएगा, यू विल गेट सॉल्व द रूट कॉज ऑफ टेंशन, स्ट्रेस और क्या था, हाँ फेलियर, और क्या था, हाँ टेरर। ठीक है, अभी मैंने पोएम में एंट्री नहीं मारे हैं, तो ये एक जनरल स्टडीज़ मैंने समझाया आपको कि दैट मीन्स यू नो अगर ज़िंदगी में ऐसा कभी सिचुएशन होता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, और इसका जो है रोल क्या है, वॉच का रोल क्या है। वॉच काउंट करते हैं तो माइंड कैसे फ्री होता है, राइट, और माइंड फ्री होता है तो दैट मीन्स यू नो हाँ वो जो पॉइंट आ जाएगा तो फिर जो जिस वजह से हम टेंशन में हैं वो उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, और जब उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा तो फिर हमारा हाँ। तो देखिए, ओपन करिए, किताब ओपन करिए नाउ। अब पोएट इज टेलिंग दैट यू नो क्या है, नाउ आई विल काउंट दैट मीन्स यू नो 1 2 3 4 12 1 2 12 एंड पोएट इज टेलिंग, नेक्स्ट लाइन में पोएट इज टेलिंग दैट यू नो लेट्स स्टॉप इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप कम्युनिकेटिंग, टेलिंग। हाँ, तो यहाँ पे पोएट कुछ पल के लिए एकदम खामोश होने के लिए कहा है, एकदम एक्टिविटी को थोड़ा सा साइलेंट सस्पेंड कर दीजिए आप। तो यहाँ पे एक्टिविटी को सस्पेंड करके पोएट क्या कहना चाह रहा है कि जब ऐसा सिचुएशन आए तो थोड़ी देर के लिए 30 सेकेंड के लिए या 2 मिनट के लिए जो है आप थोड़ा सा खामोश हो जाइए, राइट। जब आप खामोश हो जाएंगे तो फिर मैंने क्या कहा आपके दिल दिमाग में और काउंट करने लगेंगे, तो फिर क्या होगा, ये चीज़ डेवलप होगा। और जब हो जाएगा तो फिर दैट मीन्स यू नो पोएट इज टेलिंग अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर दैट मीन्स यू नो इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। यहाँ पे देखो आप क्या हो जाएगा, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, EXOTIC, एग्जॉटिक मोमेंट। एग्जॉटिक मीन्स यू नो हैप्पी मोमेंट हो जाएगा, वेरी प्लेजरेबल मोमेंट हो जाएगा। मीन्स कुछ देर पहले आपका मन आपका दिल दिमाग एकदम फियरफुल था, टेरिफिक था, आपका मन बिल्कुल टेंशन में था, आपके मन में जो है दूसरों के लिए जो है क्या था, गुस्सा भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के लिए आप यू विल कीप पेशेंस, यू विल कीप साइलेंस, तो आपके मन में जो ये जो प्रोसेस चलेगा, प्रोसेस आने के बाद पोएट कह रहा है कि दैट मीन्स यू नो इट वुड बी एन सेकेंड स्टैंजा में है लाइन, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। आपके मन में ये वाला सिचुएशन डेवलप होगा, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन। आपको हमें मशीन की तरह जो है दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं होगा, ना फिजिकली हमको दौड़ भाग करने की ज़रूरत होगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब किसी वजह से टेंशन में आ जाता है, किसी वजह से स्ट्रेसफुल आ जाता है, तो एक्शन कम होता है लेकिन शो ऑफ ज़्यादा होता है, लोगों को समझ में आने लगता है। यानी कि पोएट ये बात क्यों कह रहे हैं, पोएट आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक एजुकेटेड इंसान हो करके आप थोड़ी प्रॉब्लम को, थोड़ा सा जो है एंगर को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा गुस्सा को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, पोएट आपकी ये पर्सनालिटी को देखना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई पोएट टेल्स थोड़ा सा सब्र रखो, और जब आप इफ़ यू कीप क्वाइट तो देन आपको हर ट्रबल शूट हाँ आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आपको खुद को समझ में आ जाएगा आप किस वजह से ट्रबल में हो, किस वजह से, उसका जो रूट कॉज आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, रूट कॉज मिल जाएगा आपको। पोएट कह रहे हैं इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश। आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, भागने की ज़रूरत नहीं है, बार बार हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं है, ना मशीन लाइक आपको दिमाग चलाने की ज़रूरत है। और क्या होगा, इट वुड बी दैट मीन्स यू नो वी विल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। नेक्स्ट लाइन है,
कि हम सब लोग मिल जाएंगे, ऐसा मिलेंगे, ऐसा एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, आपके प्रति मेरा केयरिंग डेवलप होगा, आपके प्रति मेरा जो है क्या नाम है लव डेवलप होगा, एक दूसरे को हम लोग जानने लगेंगे, एक दूसरे को म्यूचुअली अंडरस्टैंड करने लगेंगे। पोएट कह रहा है कि एक बिंदास फीलिंग है, एक बिंदास आइडिया है। और ये किसका कमाल है? ये बस कीपिंग क्वाइट का कमाल है, ये बस कीपिंग साइलेंस का कमाल है। अच्छा, जब हमको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, अब पोएट मेन जगह पे ले चल रहा है हमको। क्या कह रहा है? लास्ट स्टैंजा ऑफ द फर्स्ट पेज। देखो, लास्ट स्टैंजा में कह रहे हैं कि दैट मीन्स यू नो फिशरमैन विल नॉट हार्म विल WHA इन द कोल्ड रीजन। कोल्ड रीजन में वेल एक मैमल्स बिग फिश होता है, ठीक है। जैसे आपने शार्क देखा, शील मछली को देखा, उसी तरह वेल है शार्क, SHARK शार्क या फिर शील, ठीक है। ये बिग फिश है, लेकिन ये फिश समथिंग डिफरेंट है। ये फिश दैट मीन्स यू नो ये मैमल्स फिश है। आप जानते हो इस फिश के बारे में, ये इतना स्पेशल है कि 7 to 8 ईयर्स में एक बेबी प्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स यू नो बिगेट करता है। इट बिगेट one baby after a gap of 7 to 8 years और 9 years, मीन्स इतना स्कार्सिटी है। और फिशरमैन इसको कैच कर लेते हैं, फिश करके कैच कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिशिंग करके ये क्या करते हैं फिशरमैन? ये फिशरमैन कैच करके इसको मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। दैट मीन्स यू नो इसका डिफरेंट मेडिसिनल वैल्यू इतना हाई है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू इतना हाई है कि ये अपना पॉकेट को सोचते हुए फिशरमैन ग्रीडीली इसको हार्म पहुंचाता है। आ जाओ, पोएट यहाँ पे ये क्यों कह रहा है कि दैट मीन्स यू नो फिशरमैन विल नॉट हार्म वेल इन द कोल्ड सी। पोएट मीन टू से इन द कोल्ड रीजन, दुनिया का वो जो कोल्ड रीजन है, कोल्ड रीजन में व्हेल एक ऐसा एक्वेटिक एनिमल है जो पानी के नीचे जो है गंदगी होता है, पानी के नीचे जो भी गंदगी होता है, या फिर जो फाइटोप्लैंक्टन्स होता है, पानी के नीचे जो भी फाइटोप्लैंक्टन्स है, उसका बेटा जो है, उसका जो वेस्टेज है वो खा करके स्वालो करके ये सरवाइव करता है। यानी कि जो पॉल्यूशन रहता है या वेस्टेज रहता है पानी में, कहाँ पे? कोल्ड एरिया में, जहाँ और कोई एक्वेटिक एनिमल सरवाइव नहीं कर पाता है, वहाँ पे ये बंदा, ये आपकी गॉड का ये करिश्मा है, आपके गॉड का करिश्मा है कि जहाँ पे और कोई एनिमल सरवाइव नहीं कर पाता है, बंदा ये सरवाइव करता है। और ये सरवाइव करता है, लेकिन ये बंदा को जब पता चला, फिशरमैन को जब पता चला, ये क्या कर रहा है, इसको फिशिंग करके मार्केट में सेल आउट कर दे रहा है, मार्केट में सेल आउट करके इसका प्रॉफिट अपना बटोर रहा है। फिर पोएट कह रहा है कि बंदा कभी सोचेगा कि व्हाट हार्म ही इज डूइंग, फॉर दैट यू नो ही इज इनवाइटिंग द ग्लोबल वार्मिंग। अगर आप मान के चलो कि कोल्ड अंटार्कटिका एरिया में, कोल्ड सी में अगर 10 ही फिश है, अगर ओनली 10 व्हेल्स आर देयर, ठीक है, और ये मारते बस अभी 2 ही बचा हैं, क्या विल इट नॉट बी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द पॉल्यूशन फ्री एरिया? जब पॉल्यूशन फ्री वहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा? आइस प्लेट धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि आइस प्लेट धीरे धीरे मेल्टिंग होगा, यानी कि दैट मीन्स यू नो एवरीवेयर देयर विल बी ग्लोबल वार्मिंग। तो पोएट कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इंसान को कभी तो समझदारी डेवलप होगा। कीपिंग क्वाइट करेगा बंदा तो फिर क्या होगा? इसको समझदारी डेवलप होगा। ही विल अंडरस्टैंड हिज ब्लंडर एंड ही विल स्टॉप हार्मिंग वेल। नाउ ग्रीडनेस की वजह से और एक पर्सन करते हैं, दैट मीन्स यू नो सॉल्ट गैदरर, सॉल्ट गैदरिंग मैन, सॉल्ट गैदरिंग करते करते कभी कभी कुछ, अच्छा सॉल्ट एक नॉट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस, ठीक है, लेकिन ग्रीडनेस के कारण कुछ इंसान क्या करते हैं, उसको भी बेटा हाथ लगा करके कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, इकट्ठा करना शुरू करते हैं। और यहाँ पे और एक जगह जो लोग मछली सेल करते हैं, दैट मीन्स यू नो फिश सेल आउट करते हैं। अच्छा, ये जो फिश सेल आउट करते करते देखिए, उसका पानी में हाथ रहने की वजह से, पानी में हाथ डुबा करके रहने की वजह से क्या होता है, उस गंदगी से यह हाथ जो है धीरे धीरे उंडेड हो जाता है। उंडेड मीन्स यू नो ऊंड बन जाता है, राइट। तो ऊंड बन तो जाता है, लेकिन पोएट का कहने का मतलब है थोड़ा सा ग्रीडनेस अगर घटाएं, या फिर वहीं पे अगर दैट मीन्स यू नो 2-3 वर्कर्स और रख देंगे, तो वही वर्कर्स
से ये काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उनका सेलिंग भी ज़्यादा होगा और इनको टेंशन नहीं होगा। तो दैट मीन्स कोई भी हाँ काम में जब मैन पावर बढ़ाया जाएगा तो अपने बॉडी पे ज़्यादा एग्जर्शन नहीं होगा, राइट। तो दैट मीन्स सॉल्ट गैदरिंग पर्सन विल ऑल्सो सी लुक बैक। इससे बेहतर है हम जितना अकेले काम कर रहे हैं उससे बेहतर है कि और 2 लोगों को एंगेज कर दे, और 2 लोगों को एंगेज करेंगे तो फिर क्या होगा, उनका सेलिंग भी अच्छा होगा, उनका हाथ पैर भी सलामत रहेगा, सेफ रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। सो दिस वे दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट। आइए लास्ट स्टैंजा मतलब नेक्स्ट पेज में पोएट कह रहे हैं दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया कहे हैं यहाँ पे, दोज हु आर प्रिपेयरिंग ग्रीन वॉर, दोज हु आर प्रिपेयरिंग ग्रीन वॉर किससे कहते हैं? बैटल आपने सुना होगा नाम, बैटल, देन फाइट को यहाँ पे डुएल भी कह सकते हैं आप। हाँ, डुएल किससे कहते हैं, फाइट किससे कहते हैं, और वॉर किससे कहते हैं? डुएल जब 2 बंदा होता है, ठीक है, या बंदी होती हैं, राइट, 2 पर्सन्स, व्हेन 2 पर्सन्स स्टार्ट फाइटिंग यूजिंग हैंड, जिसको हम लोग हाथापाई बोलते हैं, इसको डुएल कहते हैं, ठीक है। और 2 पर्सन से अधिक बंदा हो गया अगर, यानी कि 2 ग्रुप हो गया, और ये अनसिस्टमेटिक वे में अगर करता है, जैसे कि आपके स्कूल में जैसे कि 8th क्लास से 9th क्लास के बच्चे या 10th क्लास के बच्चे, हाँ, एक ग्रुप हो गया, और दूसरे क्लास के बच्चे या दूसरे स्कूल के बच्चे जैसे कि 5-7 बच्चे जो है आ गए, बीच में कोई समोसा खाते हुए या कोई किसी को टॉन्ट कर दिया तो फिर जो है हाँ आर्गूमेंट हो गया, और फिर जो है बात बढ़ गई आगे। हाँ, इधर एक तरफ जो है आपका 10 बच्चा, इधर एक तरफ जो है 15 बच्चा आ गया, और फिर जो है कुछ, तो उसको फाइट कहते हैं, राइट। अनसिस्टमेटिक वे में, उसको अनसिस्टमेटिक वे में, दैट मीन्स ए ग्रुप ऑफ, मान लो, ठीक है, इतना। आ जाओ, बैटल किससे कहते हैं? बैटल एक सिस्टमेटिक फाइट है, बैटल भी फाइट है, लेकिन बैटल फाइट में यहाँ पे ग्रुप है और एक कमांडर होता है, और इधर भी एक कमांडर होता है और इसके पीछे सोल्जर्स होता है, राइट। यानी कि आपने नाम सुना होगा द बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर। तो वो क्या था कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में ये गवर्नमेंटल फोर्स है और उसका एक कमांडर है, उसका एक लीडर है, लीडर के पीछे सारे सैनिक हैं, आर्मी है, ठीक है। वो एक सिस्टमेटिक वे में होता है, राइट। ये फाइट जो होता है सिस्टमेटिक वे में, अनसिस्टमेटिक फाइट की तरह नहीं है, उसको बैटल कहते हैं। और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, हो सकता है कि 10 दिन के लिए हो सकता है कि 5 दिन के लिए हो सकता है कि 1 महीने के लिए, दैट इज कॉल्ड ये। बिल्कुल वही सिस्टम है यहाँ पे भी, हाँ, लेकिन यहाँ पे ये तादाद ज़्यादा होता है, राइट, और इधर हाँ ये। लेकिन वॉर और बैटल में क्या अंतर है? वॉर अनएंडिंग टाइम के लिए, अनलिमिटेड अनसर्टेन टाइम के लिए होता है, ठीक है। 2 कंट्री की जगह 3 कंट्री भी इन्वॉल्व हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। यानी कि ओपोनेंट को गिराना, ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय करना, ओपोनेंट को डैमेज करना ही टारगेट है किसका? वॉर में। और अनसर्टेन पीरियड के लिए होता है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या कोई सिस्टम था? टारगेट था कितने दिन में ख़त्म होगा, यानी कि एक अनएंडिंग टाइम के लिए होता है। हाँ, हम यहाँ पे इस पोएम में ये चीज़ क्यों समझाना चाह रहे हैं आपको? वॉर मीन्स वो फाइट है जिसके अगेंस्ट में हम फाइट करते हैं, वो अनएंडिंग टाइम के लिए करते हैं, और उसको हमेशा हम दुश्मन समझते हैं, और उसको जो है क्या नाम है, उसको जैसे मौका मिले उसको मार गिराते हैं या फिर उसका नुकसान कर देते हैं, उसका हार्म कर देते हैं। आज भी हम करते हैं, आज आप भी करते हो। एग्जाम्पल दिखाएं, आ जाओ। ये मान लो बेटा बेचारा नेचर है आपका, ये ग्रीनरी है आपका, ये ग्रीनरी है। आप कुछ एरिया को परचेज़ कर लिए हो, ठीक है, कुछ एरिया को परचेज़ कर लिए हो, आपके पास बैंक बैलेंस माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। हाँ, बैंक बैलेंस, या फिर जो है आप चाहते हो कि वहाँ पे आप क्या करोगे, एक फैक्ट्री डाल दोगे, कंपनी सेटअप करोगे, तो फिर क्या होगा? और पैसा आएगा, पैसे का कलेक्शन। तो जब आप नेचर को कट कर दिया यहाँ पे, इजीली नेचर तो आपके अगेंस्ट में बोलेगा नहीं, क्योंकि वो आपका भला चाहता है, आपको समझ में नहीं आता है, राइट। तो ये जो नेचर को आप डेली बाय डेली यू आर कटिंग इट, डिफॉरेस्टिंग इट,
क्योंकि आपका एयर को प्यूरिफाई नेचर ही करता है ना, और वही नेचर की अगेंस्ट में आप हमेशा वॉर बोल देते हो, हमेशा नेचर के अगेंस्ट में आप काम करते हो। तो ये जो आप दैट मीन्स बचपन से लेकर आज तक आप नेचर के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। तो दैट्स वाई राइटर, आ जाओ फिर आप समझो फिर, दैट्स वाई राइटर इज टेलिंग दोज हु आर प्रिपेयरिंग ग्रीन वॉर्स, ग्रीनरी के अगेंस्ट में जो लोग वॉर किए जा रहे हैं, दोज हु आर इंक्रीजिंग गैसेस, पॉल्यूटेंट गैसेस, यूजिंग व्हीकल्स, यूजिंग स्मोक्स, यूजिंग चिमनीज, तो दोज इंसान, जो लोग, हम लोग जो है इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने के लिए हाँ, वी आर फाइटिंग, वी आर वॉरिंग, वी आर डिक्लेयरिंग वॉर विथ गैस, वी आर डिक्लेयरिंग वॉर विथ फायर, वी आर डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट ग्रीनरी। कुछ पल के लिए हम लोगों को क्या मिलेगा? विक्ट्री तो मिल जाएगा। वी विल बिकम सक्सेसफुल पर्सन सेटिंग दैट फैक्ट्री हियर, कंपनी हियर, बट अब जो इन्वायरमेंट हमने बनाया, दैट इन्वायरमेंट इज नॉट हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल। किसका? मेरा, आपका। क्योंकि आप इमेजिन करो किसी एक पर्टिकुलर ग्रीन एरिया में कितना वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, क्विंटल एंड क्विंटल, टन्स एंड टन्स, ठीक है। अब उस जगह में आप ऑक्सीजन उतना टन्स एंड टन्स जो है ऑक्सीजन तो स्टॉप हो गए, उस जगह पे आप फैक्ट्री डाल दिए हो, यानी कि पॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब आप दैट मीन्स आप नेचर को बर्बाद करके आपने क्या किया? आपने जीत तो लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ा दिए हैं, हाँ पक्का स्ट्रक्चर दैट मीन्स लुक तो ब्यूटीफाई तो कर दिया आपने, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे क्या है? पॉल्यूशन का हब बनाया आपने। ठीक है, आप पैसा भी कमा रहे हो, दिस एंड दैट, पॉल्यूशन का हब बनाया आपने। पोएट क्या कह रहे हैं कि दैट मीन्स विक्ट्री कम्स विथ नो सर्वाइवर, द नेक्स्ट लाइन गो अप, विक्ट्री कम्स विथ नो सर्वाइवर्स, मीन्स आप जो काम स्टेप उठाया हो इसमें तो आप अचीव कर लिए हो, बट ये जो इन्वायरमेंट आप दिए हो इसमें दिस इज नॉट ए प्लेस फॉर हेल्दी सर्वाइवल्स। इसका मीनिंग क्या है? समझ में आ रहा है कुछ? आ जाओ बता सकते। ये हमारी बॉडी है, बॉडी में वाइट ब्लड कर्पसल्स हैं, राइट। तो हमारी बॉडी का जो वाइट ब्लड कर्पसल्स है वो फिल्टर की तरह है, मीन्स हम हवा के जरिए दैट मीन्स एयर के थ्रू दैट मीन्स द जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस जो भी कुछ हम इंटेक कर रहे हैं बॉडी में जाते ही, हाँ इस फेफड़ा में जाते ही फिर जो है वो क्या हो रहा है? ब्लड में मिक्सअप होते ही जो है ब्लड उसको फिल्टर करके प्यूरीफाई करके उसको प्यूरीफाई करके फेंक दे रहे हैं। तो जो ये प्यूरिफिकेशन वर्क हमारे ब्लड के अंदर है, चाय की छन्नी की तरह, चाय की फिल्टर की तरह जो है काम किए जा रहे हैं। एक फिल्टर का भी बेटा एक कैपेसिटी होता है। सपोज आपके घर पे एक चाय की छन्नी है, वो आप 6 महीना चला लेते हैं, आपकी मम्मी या आपकी वाइफ, ठीक है, आ जाओ, और वही चाय की छन्नी दैट मीन्स फिल्टर आप एक टी स्टॉल में ले जाओ, विद इन ए वीक इट विल डैमेज। क्यों भाई? ओवर यूज। तो जब पॉल्यूशन स्प्रेड करके हम एयर में पॉल्यूशन एक्सीड कर रहे हैं और उसी जगह पे हम सरवाइव कर रहे हैं, उसी जगह पे हम अब रहना शुरू किए हैं, तो फिर क्या होगा? हमारा ये छन्नी बहुत ज़्यादा यूज होगा, और यूज होते होते एक दिन क्या हो जाएगा? दिस विल ऑल्सो फॉल इल, दैट मीन्स आवर बॉडी का जो एक इम्यूनिटी सिस्टम है, दैट इम्यूनिटी सिस्टम विल ऑल्सो कोलैप्स। और ये इम्यूनिटी सिस्टम जब कोलैप्स होगा तो देन वी विल बिकम पेशेंट। ये घुट के जीने में क्या फ़ायदा है? जियो तो शान से जियो तो एकदम हेल्दी जियो। फिर तो पोएट कह रहा है कि हाँ आप जियोगे ज़रूर, बचोगे ज़रूर, लेकिन क्या होगा? कहीं सांस फूलेगा, तो कहीं आप बीपी का मरीज होंगे, तो कहीं आप जो है क्या होगा? अनहेल्दी, कहीं आपके टम्मी फूला रहेगा, दिस एंड दैट वगैरह वगैरह, और मेडिसिन लिए जाओगे। मेडिसिन के बाद मेडिसिन आप पूरी ज़िंदगी दैट मीन्स उसके बाद आपकी ज़िंदगी क्या होगा? मेडिसिन पे चलेगा। तो पोएट इस कंडीशन को कहा है कि दैट मीन्स नो सर्वाइवर्स। वो नेचर को बर्बाद करके आपने जो आज मॉडर्न सोसाइटी बना रहे हैं, दैट विल नॉट बी हेल्दी फॉर लिविंग। कुछ ऐसा भी होगा कि आप कभी दम तोड़ दोगे। पर्सन आज हो रहा है, अचानक हार्ट अटैक आ जा रहा है बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को, इतना मेडिसिन इतना सब कुछ लेने के बाद भी जो है प्रीमैच्योर डेथ हो रहा है। और उस वक्त क्या करेंगे? हेल्पलेस वे में आपके रिलेटिव्स लोग आपको क्लीन क्लोथ पहना करके कंधा पे ले जाके जो है या तो ग्रेवयार्ड में आपको दफन करके आएंगे, यानी कि ग्रेवयार्ड में आपको छोड़ के आएंगे,
या तो फिर शमशान घाट में ले जाके जो है जला के फिर वो लोग सॉरोफुल्ली रिटर्न आएंगे एंड दे विल डू नथिंग। ना जो मर गया वो कुछ करेगा, ना जो रिलेटिव कुछ कर पाएंगे। ये क्या है, पोएट कह रहे हैं कि ये आपके एक्शन का नतीजा है। आपने जो वॉर बोला था किसके अगेंस्ट में, नेचर के अगेंस्ट में, जो पेड़ पौधे को ग्रीनरी को हटा करके आप तो चैंपियन बन गए थे। कुछ दिन ऐसा लग रहा था कि दैट मीन्स यू बिकम हीरो, तो हीरो आप जीरो बन गए। क्यों? मेडिसिन आपको नहीं कर पा रहा है फिर, क्योंकि आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो आपकी ब्लड का जो कैपेसिटी है, WBC का जो कैपेसिटी है, वो आपको डाउन हो चुका है, आपका डाउन हो चुका है। भाई कितना वो फिल्टर करेगा वो, तो ये नहीं हो पाता है। तो पोएट आपको इतना प्यार करते हैं, पोएट इज सो ह्यूमैनिटेरियन वन, वो कह रहे हैं कि बस कर बेटा, थोड़ा सा सोच ले, कीप क्वाइट कर ले, एंड देन व्हाट विल हैपन, इट विल सॉल्व ऑल द रूट कॉज ऑफ योर फ्रस्ट्रेशंस। तो यहाँ तक पोएम का फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट पार्ट था। यहाँ तक पोएम का ये फर्स्ट पार्ट था। आ जाओ आपको सेकेंड पार्ट में ले चलते हैं। पोएट कह रहे हैं यहाँ पे क्या कि what I want should not be confused with total inactivity. Poet in the second part, second stanza, next page, poet is telling what I want should not be confused with total inactivity. Is it there or not? बेटा पोएम पढ़ाते पढ़ाते ऑलमोस्ट याद हो गए हैं, ठीक है। तो what I want should not be confused with total inactivity means poet is telling us that don't be confused, don't be confused, don't be confused with total inactivity, total inactivity। But total inactivity means what? No work or no activity. Total inactivity means no work or no activity, or no work means no career, no career means no success, no success। बेटा जब नो सक्सेस होगा तो फिर क्या होगा? आप आज कुछ करोगे नहीं, कल आप, तो देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी विल पिंच यू, विल इंसल्ट यू, विल पास कमेंट्स। आप सुनते सुनते थक जाओगे फिर। तो लेट अस सी, पोएट इज टेलिंग दैट नेक्स्ट लाइन, दैट लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, मीन्स लाइफ इज व्हाट इज अबाउट का मतलब होता है कि दैट मीन्स व्हेन वी आर बोर्न वी विल डाई, means we are mortal persons, so we will die tomorrow, that is sure and certain. But death कब आने का है nobody knows। लेकिन इससे पहले कुछ हम लोग कर गुजरे तो फिर बेहतर है। that means before we die let us do something special, because किसी ने कहा है कि we are known not by years but we are known by the deeds we do। हम लोग जिंदा रहते हैं, इंसान भी जिंदा है। देखो आज कितना पुराना हो गया शेक्सपियर ना, शेक्सपियर एक बहुत बड़ा राइटर, रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत बड़ा राइटर, हाँ इधर रिसेंट जो भी पॉइंट, महात्मा गांधी देख लो, या फिर उधर शहीद भगत सिंह देख लो, ये कितने सारे लोग हैं जो कितने दिन पहले एक्सपायर्ड कर गए, पास्ट अवे कर गए, लेकिन फिर भी ये लोग हम लोग के दिल में जिंदा हैं। कैसे जिंदा हैं? They were not counted by the years but their important humanitarian activity that made us मेमोरेबल, राइट। तो पोएट यहाँ पे यही कहने की कोशिश किए हैं कि ज़िंदगी जब तक है तब तक कुछ करते रहना चाहिए, कुछ स्पेशल चीज़ करके जाना चाहिए। फिर तो व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड इज दैट वी डोंट लाइक टू ट्रक विद डेथ। नेक्स्ट लाइन इज दैट आई डोंट लाइक टू ट्रक विद डेथ। ट्रक रिफर्स टू हियर ट्रक, TRUCK, ट्रक का मतलब है कोलाइड, COLLIDE, कोलाइड। हियर कोलाइड का मतलब रिफ्यूज कर लीजिए आप, रिफ्यूज, या फिर जो है डिफेंस कर लीजिए। यानी कि पोएट यहाँ पे एकदम मना कर दे रहा है दैट मीन्स मैं डेथ से कुछ पंगा नहीं लेना चाहता हूँ, या फिर डेथ के बारे में कोई ऐसा बात आपको नहीं कहना चाहता हूँ जो आप ये समझ ले कि डेथ आना ही नहीं है। नो नो नो, डेथ के साथ कोई पंगा नहीं, हम डेथ को रिफ्यूज भी नहीं कर रहे हैं। डेथ विल कम व्हेन इट विल कम, मौत तो होगा,
हमको तो मरना पड़ेगा, जब ऊपर वाला बुला लेंगे तब जाना होगा। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा? उससे पहले इफ वी आर नॉट, नेक्स्ट लाइन देखो, इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, this single minded refers to targetful, TER, targetful, aimful, aimful means if we are not targetful about our career, about our future life, and if we are not aware, if we are not alert about our movings means activity, our activities means, देखो ये जो चाइल्डहुड लाइफ है, ये जो यंगर लाइफ है, ये जो एडल्टहुड लाइफ है, इस लाइफ में एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग अगर टारगेटफुल नहीं होंगे, अगर मन में संकल्प नहीं होगा, या फिर अगर हम अलर्ट नहीं होंगे कि कल का फ्यूचर बनाने के लिए जो काम करना चाहिए, हमारे पास जो कैपेसिटी है, हमारे पास जो एबिलिटी है, हमारे पास जो फैसिलिटी है, उस चीज़ को जो है उसी हिसाब से अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम वक्त को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे दिल दिमाग को, बॉडी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, और कुछ नहीं करेंगे, अगर आज की डेट में एकदम निकम्मे की तरह बैठ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? परहैप्स, शायद कुछ ऐसा दिन आएगा, अगर आप नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, तो फिर कुछ ऐसा दिन आएगा, क्या आएगा कि दैट मीन्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट अस, एक बहुत बड़ा खामोशी, हम खामोश हो जाएंगे, वो बंदा खामोश हो जाएगा, और फिर उनको बार बार ये कोचता रहेगा, पिंच करता रहेगा, खुद को वो पिंच करेगा, कहेगा शायद आई हैव नेवर अंडरस्टूड माई लाइफ, शायद मैंने ज़िंदगी को समझा ही नहीं था, केयरलेस वे में टाइम पास कर दिया, दैट मीन्स अनअवेयर्ड वे में टाइम पास कर दिया, क्या था, लेजी पर्सन बन के टाइम पास कर दिया। महबूब सर, राजेश सर, रोहित सर, शुक्ला सर, कितना समझाने की कोशिश किया, लेकिन हम समझा ही नहीं, और नहीं समझे तो फिर आज क्या हुआ? नहीं समझे तो दैट मीन्स देयर इज ए ह्यूज ट्रबल, एंड नाउ द सैडनेस, ultimately this sadness will leads to what? This sadness leads to silence, and that silence makes that person's a huge silence to become sad. Now that person on that particular day, that person on particular time will reproach himself, खुद को वो कोचना शुरू कर देते हैं, वो खुद को जो है कोचना शुरू कर देते हैं, इस तरह कोचना शुरू कर देते हैं कि एवरी नाउ एंड देन अब उनको लग रहा है कि दैट मीन्स इस जीने में कोई फ़ायदा नहीं है, दैट मीन्स ही और शी वांट्स नाउ टू गेट सुसाइड, यानी कि ये घुटन भरी ज़िंदगी जो है अब जी रहा है वो, दैट मीन्स वो जीने में कोई मज़ा नहीं है, उनको अब खुद को अफसोस हो रहे हैं, इतना अफसोस कर रहे हैं लास्ट में, दैट मीन्स हमने कभी ज़िंदगी को समझा ही नहीं, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग माई लाइफ। ये जो नेवर अंडरस्टैंडिंग वाला लाइफ है, कभी समझा ही नहीं, ये जो रिप्रोचिंग होगा, ये जो रिपेंटेंस होगा, पोइट कह रहे हैं कि बेहतर है आज सिंसियर हो जाओ, बेहतर है आज रिस्पॉन्सिबल बन जाओ, बेहतर है आज सिंगल माइंडेड हो जाओ, बेहतर है आज अलर्ट हो जाओ, तो कल आपको ये वाला खुद को ना किसी से कोई कमेंट सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। सो दिस वे पोइट हैज़ मेड अस अलर्ट इन दिस पोएम, कीपिंग क्वाइट। थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा साइलेंट हो जाओ, थोड़ा सा फील करो कि आप ज़िंदगी में आए क्यों हो, ज़िंदगी का मीनिंग क्या है, और फिर आपको कैसे ये ज़िंदगी चलाना है, ये थोड़ा सा समझ जाओ आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। फिर लास्ट स्टैंजा में पोइट इज टेलिंग इन द लास्ट स्टैंजा व्हाट? परहैप्स। अब पोइट की बात हम आपको कहेंगे, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स। परहैप्स नेचर कैन टीच यू। अरे टीचर बन के बेटा हमने भी आपको समझा नहीं पाए हैं, कोई और टीचर भी आपको समझा नहीं पाए, बेटा कोई बात नहीं, फ्रेंड्स कोई बात नहीं। जो ना समझने वाले होते हैं ना, उनको रियली कोई समझा नहीं पाता है, लेकिन काश पोएट ने अभी हाल छोड़ा नहीं है, पोएट ने अभी लास्ट दम तक, पोएट कह रहे हैं कि शायद, पोएट खुद कह रहे हैं कि परहैप्स मैंने भी समझा नहीं पाया आपको, अलर्ट नहीं कर पाया। लुक एट नेचर,
नेचर विल मेक यू अंडरस्टैंड, नेचर कैन टीच अस। क्योंकि नेचर कैसे टीच कर सकता है हमें? जो बंदा सिंसियर नहीं है तो वो नेचर को तो एकदम क्या लगता है, नेचर एक डेड, नेचर मीन्स नथिंग। उनको समझ में ही नहीं आता है कि नेचर में भी एक लाइफ है। लेकिन जो बंदा अलर्ट हो गया, सिंसियर हो गया, जो बंदा रिस्पॉन्सिबल बन गया अबाउट हिज कैरियर और हर कैरियर और एवरीबॉडीज लाइफ, तो उसको नज़र आएगा कि एक पौधा को जब बोया जाता है, हाँ बीज बोया जाता है तो पौधा होता है, फिर पौधा ग्रो होता है तो फिर ये जो चेंजेस है, चेंजेस क्यों है? यानी कि दैट प्लांट इज़ वेरी एक्टिव वन। और जब एक्टिव होता है तो फिर क्या होता है? चेंजेस आता है। और चेंजेस होके क्या करता है? सीड्स प्रोड्यूस करके फिर वो जो है अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, मर जाता है फिर। तो यानी कि नेचर हर पौधे का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फूल खिलाएगा, फिर उसे फल फलाएगा फिर, और वो फल हो सकता है कि बर्ड्स के लिए, ह्यूमन के लिए क्या है? फूड है। जो पैडी है, व्हीट है, ये क्या है? तो ये जो नेचर में ये सारे जो है पौधे उग रहा है, क्रॉप्स उग रहा है, कॉर्न उग रहा है, वो किसके लिए? हमारे लिए। यानी कि वो पौधा हमारे लिए काम कर रहे हैं और अदर एनिमल के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक आप ही वो इंसान है जो निकम्मा बैठा हुआ है। बात समझ में आई? तो बट यही है, समझने की बात है कि जब आपको समझ में आएगा तो हर पत्ते पत्ते में लाइफ है, आपको नज़र आएगा। हर पत्ते पत्ते में लाइफ है, हर इवन की। किसी ने कहा होगा कि आपको सुना होगा, आपने सुने होंगे कि पत्थर भी बोलता है, लेकिन पत्थर की आवाज़ सुनने के लिए आपके कान होना चाहिए। फिर पेड़ पौधा भी झुक के सलाम करता है, उसके लिए भी बेटा क्या होना चाहिए? फिर आपका वो नज़रिया होना चाहिए। फिर पेड़ पौधा भी झुक के किसी को सलाम करता है, किया था, राइट? तो इसके लिए भी बेटा दिल में वो आनी चाहिए, अलर्ट होनी चाहिए कि हाँ, एवरीवेयर देयर इज़ ए लाइफ। हर शू में, हर नूक्स एंड कॉर्नर में क्या है? जिंदगी है। और हर कोई चीज़, इस दुनिया के हर कोई चीज़ एक अपना एक्टिविटी में मग्न है। हर कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल माइंडेड है, सिवाय एक को छोड़ करके। वो कौन है? हम हैं, आप हैं, वो सब लेजी पर्सन्स हैं। तो पोएट वॉन्ट्स टू डेवलप दिस आइडिया। बेटा सिंसियर हो जाओ बेटा, हाँ टारगेटफुल बन जाओ बेटा, हाँ ब्रिंग एम इन योर लाइफ, दैट्स ऑल। नाउ इन दिस पोएम, ऐसे तो शॉर्ट क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन मैंने जितना क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन समझाएं, इससे जो भी क्वेश्चन आ सकता है आई होप कि क्या आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन जनरली आएगा फिर दैट मीन्स व्हाई देयर इज ए व्हाई डू यू कीप क्वाइट। तो कीप क्वाइट का फ़ायदा क्या है? दैट मीन्स टू डेवलप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, टू डेवलप पीस इन आवर हार्ट, we keep quiet, because when we keep quiet there is a process goes, introspection, retrospection happens, and now after this introspection, retrospection happens in our mind, we get solutions of all the root problems. अच्छा इन दिस पोएम में और एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि डज पोएट सपोर्ट और एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी? नो। पोएट यहाँ पे थोड़ा सा संत होने के लिए कहा है, पोएट आपको थोड़ा सा पीसफुल बनने के लिए कहा है, ना कि टोटल इनएक्टिव होने के लिए कहा है। ना इनएक्टिविटी का तो पोएट दुश्मन है, लेजी पर्सन का तो पोएट दुश्मन है। दुश्मन बोले तो मतलब जो है पोएट यहाँ पे ऐसा नहीं कहा है। पोएट आपको एक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अलर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आंसर इज दैट पोएट डजंट एडवोकेट डेथ, टोटल इनएक्टिविटी। दैट्स ऑल, थैंक यू।